Welcome back, students. So today we're gonna solve exercise 5.2 of class 10th mathematics NCERT chapter 5 arithmetic progression. Okay, so without wasting our time, let us start exercise 5.2. Question number 1, fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference and N the nth term of an AP. Okay, बच्चों, this exercise is based on the formula an is equal to a plus n minus 1 into d, which we have discussed earlier. This exercise is based on this formula. What is an means? An means the nth term, है ना? Nth term. A means the first term of the AP or first term of the arithmetic progression. N is the number of terms. D is the common difference, which we have already discussed earlier. So, question number 1, first part. What are given to us? A is equal to 7, D is equal to 3, N is equal to 8. We have to find AN. हमें क्या find करना है? AN. बच्चों, एन ए एन डी ये चार लेटर्स हैं, चारों के अलग अलग मीनिंग है. हमें कोई सी भी प्रॉब्लम आएगी, है ना, हमें कोई सा भी अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो उनमें से 3 दिए रहेंगे, हमें चौथा लेटर फाइंड करना रहेगा, है ना. मीन्स आइदर इट विल बी गिवन टू अस द nth टर्म ऑफ द एपी और आइदर वी हैव गिवन विथ फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और आइदर वी आर गिवन विथ nth टर्म और कॉमन डिफरेंस. इन चारों में से कोई सी भी 3 हमें क्वांटिटी दी होगी. वी हैव टू फाइंड द फोर्थ क्वांटिटी. ओके, सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वी हैव टू फाइंड द n. ठीक है, a क्या दिया हुआ है 7 प्लस n इज 8 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3. तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3. पहले हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि पहले एडिशन करना है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. सो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21. सो ए एन इज इक्वल टू 28. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना. अपन चेक भी करते जाएंगे क्योंकि कितनी बार क्या होता है, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं. नाउ लेट अस solve the second part. A is equal to minus 18. D we have to find. N is equal to 10 and AN is equal to 0. Okay, substitute this formula, substitute these values in that formula, है ना. इस फॉर्मूला में अपन वैल्यू पुट कर देंगे. AN is equal to A plus n minus 1 into d. n is 0, a is minus 18 plus n is 10 minus 1 into d. d की वैल्यू हमें फाइंड करनी. माइनस 18 को अपन ट्रांसपोज करते हैं इधर, है ना. माइनस 18 विल बिकम प्लस 18 इक्वल टू 9d. 10 माइनस 1 9, 9d. ओके, सो 18 अपॉन 9 is equal to d. So d is equal to 2. d is equal to 2. This is the second one. Let us try third one. A we have to find. D is equal to minus 3. N is equal to 18 and AN is equal to minus 5. Okay, so what is our formula? N is equal to a plus n minus 1 into d. Let us substitute the value in this formula. Minus 5 is equal to a तो हमें फाइंड करना है. n is 18 minus 1, d is minus 3. तो minus 5 is equal to a plus 18 minus 1 17 into minus 3. Minus 5 is equal to a. 17 into minus 3 is minus 51. Let us substitute the minus 51. Transpose the minus 51 to the RHS. So minus 5 plus 51 is equal to a or 46.
So A is equal to 46. Let us check our answer. Okay, D is equal to 2 and A is equal to 46. Yeah, good. Okay, now fourth. A is equal to minus 18.9, D is equal to 2.5, N we have to find, and AN is equal to 3.6. Okay, so our formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN is 3.6, A is minus 18.9, plus we have to find N minus 1, D is 2.5. माइनस 18.9 को अपन ट्रांसपोज कर लेते हैं तो इट विल बिकम प्लस 18.9 N minus 1 into 2.5, 3.6 18.9 3.6 5, that is 22.5 N minus 1 into 2.5. बच्चों ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको अपन ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा. Okay, so it will become 9 times n minus 1, minus 1 को इधर लेकर आए तो it will become 10. So n is equal to 10. Let us check our answer. N is equal to 10. Okay. Move to the fifth part. Fifth, A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 105. We have to find AN. Okay, so AN is equal to A plus N minus 1 into D. This is our required formula. Let us substitute the value over here. AN हमें find करना है तो A is 3.5 plus 105 minus 1 into D. D is 0, तो AN is equal to 3.5. ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस 104 into 0, तो 3.5 104 into 0 is 0, so AN is equal to 3.5. This is our required answer. Move to the question number 2. Question number 2, first part. Choose the correct choice in the following and justify. It is MCQ, हाँ, but we have to find the value. दिया हुआ है 30th term of the AP. Find करना है हमें 30th term. Means we have to find 30th term means n is equal to 30 और हमें क्या find करना है 30th term मतलब we have to find A30 and the AP is given to us. AP is 10, 7, 4. ठीक है, this is an infinite AP. ठीक है,
हमें क्या फाइंड करना है, A30। ओके, तो हमें पता है इस फॉर्मूले में कितने लेटर्स हैं, AN हमें यहाँ पर N दिया हुआ है, ना ही हमें D मालूम है और ना ही हमें A मालूम है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D एज वेल एज वैल्यू ऑफ A। तो व्हाट इज A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। तो A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 10। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड D। तो D का कल अपन ने D का हमें मालूम है, D कैसे फाइंड करते हैं, है ना, किसी भी टर्म में से उसकी पहले वाली टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 मीन्स D इज इक्वल टू -3। D भी पता चल गया, N है मालूम है, A हमें मालूम है। नाउ वी हैव टू फाइंड A30। ओके, इट इज़ वेरी इजी। A30 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A30, A is 10, N is 30 माइनस 1, D कितना है, D is -3। तो A30 is equal to 10 plus 29 into -3, 29 30, that is 87 minus 87। तो A30 इज इक्वल टू -77। देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, यस, C इज -77। ओके, लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। दिस इज ऑल्सो एन MCQ। 11th term of an AP, we have to find the 11th term, means we have to find A11। ठीक है, सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11th टर्म फाइंड करनी है। और AP हमें दिया हुआ है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। सो बच्चों, दिस इज अवर A1, दिस इज A2, दिस इज A3। ठीक है, तो A तो हमें मालूम है, A इज इक्वल टू -3। A1 एंड A बोथ आर सेम। फर्स्ट टर्म इज -3। वी हैव टू फाइंड D। तो D भी है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1। व्हाट इज A2, -1/2। ठीक है, -A1 -3। तो D इज इक्वल टू -1/2, माइनस प्लस, सो -1 प्लस 6/2, डेट इज 5/2। D is 5/2। Let us substitute the value। An is equal to A plus N minus 1 into D। An, A11, A is -3, 11 minus 1, D is 5/2। So A11 -3 plus 10 into 5/2, 2 से 2 5 times। A11 is equal to -3, 5 5 is 25। तो A11 is 22। लेट अस चेक द ऑप्शन, 22 दिया है या नहीं। यस, बी वाला दिया हुआ है। सो आंसर इज 22। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In the following AP, find the missing term in the boxes। Okay, अभी हमें missing term find करनी है। हमें हर बार एक ना एक AP दिया होगा and we have to find the missing term। Now here is 2, ये missing term है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 26। Okay, so बच्चों, this is an AP। ठीक है, यहाँ से हमें डिडक्ट करना है, हमें क्या क्या वैल्यूज हमें मिल रही हैं। देखो, A फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2। दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज A1, A2 एंड दिस इज थर्ड टर्म, A3 इज 26। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड A2।
A3 कितना दिया है बच्चों? 26. तो A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D. अरे कल अपन ने देखा था ना, A4 को अपन A प्लस 3D लिखते थे, A5 को अपन A प्लस 4D लिखते थे, AN को अपन A प्लस N-1D लिखते थे. तो N-1 थर्ड टर्म है, तो ये कितना होगा? A प्लस 2D होगा ना. A प्लस N-1 यानी 3-1 इंटू D, यानी 3-1 कितना मिलेगा? 2. तो A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D. A की वैल्यू क्या है बच्चों? A की वैल्यू A3 इज 26, A इज 2 प्लस 2D. तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D. 24 इज इक्वल टू 2D. तो D इज इक्वल टू 24/2, दैट इज 12. D की वैल्यू कितनी मिली? 12. ओके, D इज 12. नाउ वी हैव टू फाइंड A2. A2 इज A प्लस D. A2 को अपन क्या लिख सकते हैं? इस A में D को प्लस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा ना. तो A2 इज इक्वल टू A कितना है? 2 प्लस 12 मीन्स A2 इज इक्वल टू 14. Okay, A2 is equal to 14. Let us check the answer. 14. Let us move to the second part. Blank 13 blank 3. Okay. Now we have to find the two term. फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड, देखो बच्चों, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4. हमें A1 भी फाइंड करना है, A3 भी फाइंड करना है, A2 हमें 13 दिया हुआ है, A4 हमें 3 दिया हुआ है. ओके, सो लेट अस फाइंड द वैल्यू. देखो बच्चों, A2 कितना दिया है? 13. A2 कितना दिया हुआ है? 13. तो हाउ कैन बी राइट A2? A2 कैन बी रिटर्न एज A प्लस D. A में D को ऐड कर देंगे. अरे AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D. तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ क्या होगा? 2-1 इंटू D. तो 2-1 यानी 1D. तो A प्लस D. अरे A2 कैन बी रिटर्न एज A प्लस D एंड A4 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 3D. तो A प्लस D, A2 कितना दिया हुआ है? 13. A2 कैन बी रिटर्न एज A प्लस D एंड A4 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 3D. ये कितना दिया हुआ है? 3. बच्चों ये देखो, हाँ इन्हें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3. क्या बन गया बच्चों? These are the linear equation, pair of linear equation in two variables. मैंने बोला था ना चैप्टर की शुरुआत में कि हम यहाँ पर सारे कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वेरिएबल आर A एंड D. हियर भी वेरिएबल आर A एंड D. अब ये दो इक्वेशन मिल रही हैं. लेट अस सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. नीचे वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. A माइनस A. Now D minus 3D is minus 2D. 13 minus 3 is 10. So D is equal to 10 upon minus 2. That is D is equal to minus 5. D कितना मिला हमें? minus 5. Okay. D is minus 5. Now what we have to find? अब हमें A भी फाइंड करना है. हमें A plus D तो दिया हुआ है 13. तो D हमें दिया हुआ है minus 5. -5 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं. तो A इज इक्वल टू 18. मतलब फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई. कितनी मिली? 18. नाउ वी हैव टू फाइंड A3. ओके, A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D. फाइंड कर लेते हैं. A कितना है? A इज 18, D इज -5. 18 minus 10, A3 is equal to 8. So A is 18 and A3 is 8. Let us check the answer. 18 and 8.
third part 5 blank, again blank, then 9 1 by 2. Okay, now here this is A1, this is A2, A3 and this is A4. A हमें दिया हुआ है A1 मीन्स A कितना दिया हुआ है 5 एंड A4 इज 9 1 by 2 और 9 1 by 2 2 9 are 18, it can be written as 19 by 2. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड A2 एंड A3. हमें A2 और A3 दोनों फाइंड करना है. हाँ, तो A2 और A3 कैसे फाइंड करें? A तो दिया हुआ है, A4 कैन बी रिटर्न एज A plus 3D एंड A plus 3D इज 19 by 2. तो A plus 3D इज इक्वल टू 19 by 2. अब यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं. A कितना है 5 plus 3D इज इक्वल टू 19 by 2. तो 3D is equal to 19 by 2 minus 5. So 3D is equal to 19 minus 10 by 2. 3D is equal to 9 by 2. So D is equal to D is equal to 3 by 2. D कितना मिला बच्चों? 3 by 2. ये 3 नीचे चला जाएगा ना इधर. ओके, नाउ we have to find A2 and A3. So A2 can be written as A plus D. A कितना है? A is 5 and D is 3 by 2, that is 10 plus 3 by 2, that is 13 by 2. A3 can be written as A plus 2D. A is 5, 2 into 3 by 2. 2 से 2 कटा, 5 plus 3 8. So our answer are 13 by 2 and 8. Okay, 13 by 2 and 8. 6 1 by 2 and 8. It is correct. Let us move to the fourth part. -4 blank, then blank blank blank, 4 बार blank है, then it is 6. Okay, so this is A1, A2, A3, A4, A5 and this is A6. तो हमें सिर्फ A और A6 दिया हुआ है. A इज इक्वल टू -4. A1 और A दोनों सेम होता है बच्चों, ठीक है. A6 इज इक्वल टू 6. सो A6 कैन बी रिटर्न एज A plus 5D. तो A plus 5D इज इक्वल टू 6. A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ. -4 plus 5D इज इक्वल टू 6. तो 5D इज इक्वल टू 6 plus 4. 5D इज इक्वल टू 10. तो D इज इक्वल टू 2. 5 by 10 by 5 means 2. D is equal to 2. Now we have to find A2, A3, A4 and A5. Let us find A2 can be written as A plus D. A is -4, D is 2. So A2 is -2. A3 can be written as A plus 2D. -4 plus 2 into 2, that is -4 plus 4, that is 0. This is A3. A4. A4 is A plus 3D. -4 plus 2 into 3 into 2, that is -4 plus 6, that is 2. A5 is equal to A plus 4D. -4 plus 4 into 2, that is -4 plus 8, 4. So A2 is -2. A3 is 0, A4 is 2 and A5 is 4. Let us check our answer. -2 0 2 4. Okay, answer is correct. Let us move to the fifth part.
blank 38, then again blank, 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 minus 22. Okay बच्चों, this is A1, A2, A3, A4, A5 and this is A6. Now we have to find A1, A3, A4, A5. क्या क्या दिया हुआ है हमें? A2 दिया हुआ है, that is 38. तो A2 can be written as A plus D. This is our first equation. Similarly यहाँ पर हमें दिया है A6 is equal to minus 22. तो A6 can be written as A plus 5D is equal to minus 2. This is our second equation. So what we have get? We have get pair of linear equation in two variable. That is A plus D is equal to 38 and A plus 5D is equal to minus 22. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. ए एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, ए माइनस ए 0. ठीक है, डी माइनस 5D माइनस 4D. 38 plus 22, 38 plus 22 is 60. So D is equal to 60 upon minus 4. D is equal to minus 15. D हमें पता चल गया है बच्चों, हमें A फाइंड करना पड़ेगा. तो A plus D is equal to 38. तो A plus minus 15 is equal to 38. A is equal to 38 plus 15. तो A is equal to 53. A की वैल्यू कितनी आई बच्चों? A is equal to 53. ओके, अब A पता चल गया हमें. We have to find A3, A4 and A5. A3 can be written as A plus 2D. A is 53 plus 2 into D is minus 15. So 53 minus 30. 53 minus 30, that is 23. This is A3. A4 can be written as A plus 3D. So 53 plus 3 into minus 15. 53 minus 45. 53 minus 45 is 8. A5. A5 is A plus 4D. So A is 53. 4 into minus 15. So 53 minus 60. That is minus 7. So let us check our answer. 53, 23, 8 and minus 7. Yes. Okay. Move to the next question. Question number 4. Which of the following term of AP is 78? बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लास 10th में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, सब में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको समझना है तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. देखिए बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको 50% सॉल्यूशन पता चल गया. उसके बाद आपको वो एल्गोरिथम मालूम है, आपको उसमें वैल्यू पुट करना है. ठीक है, बट कौन सा लेटर का मीनिंग क्या है और कौन सा वैल्यू हमें दी हुई है, ये पहले हमें अच्छे से समझना है. ठीक है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, है ना. ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये रहता है कि वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, क्योंकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा घुमावदार रहता है या कुछ भी रहता हो वो उससे. पर अगर हमें इसे समझना है तो सबसे पहली बात, हर वर्ड प्रॉब्लम को आपको 2 से 3 बार रीड करना है. कॉमा, फुल स्टॉप
हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कॉमा कहीं लगा है तो वहाँ तक के सेंटेंस का पहले मीनिंग समझना है, फुल स्टॉप लगा है तो वहाँ तक के सेंटेंस का मीनिंग समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी एक हमें दिया हुआ है, दैट इज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, दिस इज एन इनफाइनाइट एपी। अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें पता करना है कि जो ये 78 है ये कौन सा टर्म है, विच टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना पड़ेगा, विच टर्म बोला है ना, मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो an दिया हुआ है हमें, है ना, हमें ये नहीं मालूम कौन से नंबर का ये टर्म है, पर हमें मालूम है दिस इज द nth टर्म एंड इट इज 78 एंड वी हैव टू फाइंड n। क्या फाइंड करना है हमें, n। a फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, दिस इज a, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। नाउ वी हैव टू फाइंड d, d इज a2 माइनस a1, a2 is 8, a1 is 3, that is d is equal to 5, ठीक। Now let us substitute the value in the formula, an is equal to a plus n minus 1 into d। an हमें दिया हुआ है 78, दिया हुआ है ना, विच टर्म ऑफ एन AP इज 78 यानी an, विच यानी n फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ टर्म, a is 3 प्लस n माइनस 1, d कितना दिया हुआ है 5, तो 78 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 5, दैट इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा, 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 16, n is equal to 16. तो 16th term of an AP is 78. Question number 5. First, find the number of terms in each of the following AP. Number of terms मतलब हमें n तो फाइंड करना है, number of terms बोल रहा है in each of the following AP. ओके, अब AP को बच्चों अगर आप देखो, AP हमें दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड 205। अब इस AP में से हमें सब कुछ इस AP में से ही मिलेगा, ठीक है, इस AP में ही देखना है बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 7, तो a इज इक्वल टू 7। नाउ वी हैव टू फाइंड d फाइंड करना है, a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, अरे ये a2 है और ये a1 है, तो a2 माइनस 7 करेंगे ना, 13 माइनस 7 इज 6, d इज 6। हाँ देखो a पता चल गया है, n फाइंड करना है, d पता चल गया है ना, वी हैव टू फाइंड n, an है ना, an फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म an इज द लास्ट टर्म, ये क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द AP। ओके, सो an इज इक्वल टू 205, सब यहीं से मिला हमें। ओके, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ n। So an is equal to a plus n minus 1 into d. What is an? An is 205, a is 7, n minus 1, d कितना दिया हुआ है 6, तो 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6, 205 minus 7 is 198, n minus 1 into 6, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में आ जाएगा, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 34। अरे 1 को ट्रांसपोज करेंगे ना, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 31 + 1 34, 33 + 1 34, तो n इज इक्वल टू 34।
Let us move to the second part, that is AP हमें दिया हुआ है 18, 15 1/2, 13 एंड -47। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहाँ से हमें वैल्यू रिपीट करनी है, हमें वही फाइंड करना है, एन ही फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें एन फाइंड करने को बोला है। सो दिस इज ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 18, तो इट विल बिकम ए। लास्ट टर्म ऑफ एपी इज -47, तो ए एन इज इक्वल टू -47। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड डी, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 इज 2 15 जा 30, 30 + 1 31/2 माइनस A1 is 18, so 31 minus 36/2, so D is equal to -5/2. D is -5/2. Let us find the value, substitute the value. An is equal to A plus n minus 1 into D. An कितना है, -47, A is 18, n minus 1, n तो हमें फाइंड करना है, d कितना दिया हुआ है, -5/2। 18 को ट्रांसपोज करते हैं, तो इट विल बिकम -18, n minus 1 into -5/2, तो -47 -18 50 -65, ओके। -5/2, तो इट विल बिकम -65 इंटू 2/-5 इज इक्वल टू n - 1। अरे 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, 5 नीचे आएगा, 5 से 65 13 टाइम्स इधर कर रहा हूँ, है ना। यह मिला 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n - 1, तो 26 इज इक्वल टू n - 1, -1 को ट्रांसपोज करेंगे 27 हो जाएगा, n is equal to 27, okay। Question number 5 is completed. Now move to the question number 6. ना बच्चों, दिस इज अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, हाँ इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है हमें, एपी इज 11 8 5 2 एंड सो ऑन। दिस इज A1 A2 A3 एंड A4। हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। क्या -150 इस एपी का कोई सा टर्म होगा? ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे देखना, अब समझना। हाँ, अपन मान लेते हैं कि -150 जो है इस एपी का nth टर्म है। हमें यही चेक करना है ना कि -150 इस एपी को बिलोंग करता है या नहीं, इस एपी में वो टर्म आएगा या नहीं। तो हम मान लेते हैं जो -150 है वो इस एपी का nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है, तो an इक्वल टू -150। एपी का पहला टर्म क्या है, 11। डी क्या होगा, A2 माइनस A1, 8 माइनस 11, यानी D इज इक्वल टू -3। हाँ, अब हमने माना कि ये -150 हमारे एपी का nth टर्म है। ठीक है, तो कौन से नंबर का टर्म है ये फाइंड कर लेते हैं हम फाइंड कर लेते हैं n कि -150 कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, nth टर्म माना है, तो कौन से नंबर का टर्म है ये भी फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला कहता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज -150,
A is 11, n minus 1, D is -3. इस 11 को इधर ट्रांसपोज करा तो इट विल बिकम -11, n minus 1 into -3, तो इट विल बिकम -161, n minus 1 into -3, तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n minus 1, माइनस से माइनस। अब देखो बच्चों 161/3 दिया हुआ है, हाँ गौर से देखना। मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट 5.3 और 5.3 डिवाइडेड बाय 3, 5 ज़ा 15 बचा 1, ठीक है, सॉरी 53, 3 ज़ा 9 बचा 2, डेसिमल लगा के लिया 0 एंड सो ऑन, 53.666 n minus 1। अब मैं अगर 1 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो इट विल बिकम 54.6 बार, 54.6 बार। अब बच्चों मुझे एक बात समझाओ, अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सर 4 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, 1 मेंबर है, 2 मेंबर है। मीन्स योर आंसर शुड बी अ नेचुरल नंबर। क्या होगा? एक नेचुरल नंबर या एक काउंटिंग नंबर ही होगा। कोई भी अपने घर में यूँ नहीं बोलेगा कि सर मेरे घर में 1.2 मेंबर्स हैं, 1.5 मेंबर्स हैं या 6.7 मेंबर्स हैं। ऐसा कोई बोल सकता है? नो। नंबर ऑफ टर्म इज अ काउंटिंग नंबर और अ नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ टर्म जो हमें आंसर मिलेगा, n की जो वैल्यू मिलेगी, n की जो हमेशा वैल्यू मिलेगी, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। कैसी वैल्यू मिलेगी हमें? n की नेचुरल नंबर मिलेगा। कभी भी n हमें डेसिमल में नहीं मिलेगा या नेगेटिव नहीं मिलेगा। इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। n की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी? एक नेचुरल नंबर। तो क्या तुम ही बताओ, कोई सी भी टर्म AP की 54.6 टर्म हो सकती है? नो, आइदर इट विल बी ए 54th टर्म और आइदर इट विल बी ए 55th टर्म। यही होगा ना। एक AP में अगर an - 150 है तो इसको 54th टर्म होना चाहिए था या 55th टर्म होना चाहिए था? 54.6 टर्म, ऐसा कुछ टर्म होता ही नहीं है जो एग्जिस्ट करता। सो क्लियरली n शुड बी अ नेचुरल नंबर होना चाहिए जब भी हम n फाइंड करें। ठीक है, तो an इक्वल टू -15 डजंट बिलोंग टू AP। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक नई चीज़ पता चली कि हमें n की वैल्यू हमेशा क्या मिलनी चाहिए? नेचुरल नंबर। ना ही कभी वो हमें नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव मिल रही है तो एक बार वापस से आंसर को चेक करो, वापस से अपना कैलकुलेशन जो करा उसको चेक करके देखो कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है। डेसिमल में मिल रहा है आंसर तो वापस से एक बार कैलकुलेशन को चेक करो। ठीक है, अगर तुम्हें डेसिमल में मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो ये वापस से तुम्हें एक बार बता रहा है कि आप आंसर चेक करो। n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। ओके, आई होप यू हैड अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो let us move to the question number 7. Find the 31st term of an AP. Find 31st term of an AP. A31 फाइंड करना है। Of which third term is 12. थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है and the last term is 106. an is 106.
सॉरी क्वेश्चन को मिला के पढ़ दिया मैंने, 7th में 8th का पार्ट पढ़ दिया है ना। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38, 11th term is 38 and 16th term is 73, 16th term is 73। ओके, A31 फाइंड करना, A11 और A16 दिया हुआ है। A11 बच्चों, A11 कैन बी रिटर्न एज A + 10D और A11 कितना दिया 38, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। A16 कैन बी रिटर्न एज A + 15D, कितना दिया हुआ है 73, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है ना, बहुत इजी हो जाता है उससे, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करता हूँ। इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा A माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल, 10 - 15D - 5D है ना, 38 - 73, 73 - 38 5, दैट इज -35, -35। तो D इज इक्वल टू -35 बाय -5, दैट इज D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू 7 मिली, तो A + 10D इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो A + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 - 70, 10 × 7 70, उधर जाएगा -70, तो इट इज़ -32। A की वैल्यू कितनी आई -32। नाउ हमें क्या फाइंड करना, A31। A पता चल गया हमें, D पता चल गया, N तो पता ही है। देखो बच्चों कौन सी टर्म फाइंड करनी, A31, तो N = 31 हो गया। A अभी हमने निकाला है, A = कितना आया -32, D कितना आया है 7। ठीक है, वी हैव टू फाइंड A31, तो A31 ठीक है, A31 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं A + 30D, इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। 31 कैन बी रिटर्न N-1 है ना, 31 - 1 30D। A31, A कितना है -32, 30 × 7, A31 - 32 + 210, तो 210 - 32 दैट इज 8 और -7 178। A31 is 178। Let us check the answer. Okay, correct. So A31 is 178. Move to the question number 8. An AP consists of 50 terms. An AP consists of 50 terms. AP के अंदर 50 terms हैं, ठीक है, मतलब N is equal to 50, of which third term is 12, जिसमें जो थर्ड टर्म है वो कितना है 12, and the last term is 106, लास्ट टर्म इज 106। हमसे क्वेश्चन की शुरुआत में कह रहा है कि एक एपी में 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अगर 50 टर्म है, क्लियरली लास्ट टर्म इज A50। अरे लास्ट टर्म क्या होगी A50, और A50 कितना दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म, हमें A29 फाइंड करना है। ओके,
ठीक है, कर देते हैं। थर्ड टर्म a3 हमें कितना, a3 कैन बी रिटर्न एज a प्लस 2d, ये 12 हो गया। a50 कैन बी रिटर्न एज a प्लस 49d, ये दिया 106। दिस आर द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आ गई इक्वेशन। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, है ना। दो इक्वेशन है, एलिमिनेट हो सकता है, कर देते हैं एलिमिनेट। तो दिस इज माइनस 47d, 106 में से 12 गया, तो दिस इज माइनस 94। तो d इज इक्वल टू माइनस 94 बाय माइनस 47, दैट इज d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2। a फाइंड कर लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8, a 8 आ गया, d हमें 2 पता चल गया। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड a29। a29, अरे तो a29 को ऐसे लिखो ना, a प्लस 28d, ठीक है। तो a इज 8, d इज 2, तो a29 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, तो a29 is 64. Let us check the answer. a29 is 64. Yes, it is correct. Okay, move to the next part. Question number 9. Question 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8, if the third and the ninth term, third and the ninth term, if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8, third term 4 है और ninth term क्या है, minus 8, which term of AP is 0? पता करो which term, वापस से विच टर्म का बोल रहा है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। विच टर्म जहाँ पे भी आया मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी? क्लियर है, जब भी हमको विच टर्म करके क्वेश्चन आए और हमसे पूछा है कि यह टर्म कौन सी टर्म होगी, तो हमें उसको क्या मान लेना है, ए एन मान लेना है। क्या मान लेना है, उसको हम कंसिडर करेंगे दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, A3 दिया है, A9 दिया है। A3 can be written as a plus 2d, A9 can be written as a plus 8d. Again, these are the pair of linear equation in two variable. So a plus 2d equal to 4, a plus 8d is equal to minus 8. ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। a से a कैंसिल, 2d माइनस 8d माइनस 6d, 4 plus 8 that is 12, so d is equal to 12 by minus 6 that is minus 2, d is equal to minus 2, ठीक है। फॉर्मूला इज an is equal to a plus n minus 1 into d, an is 0, a पता है, नहीं पता है, ओके। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द a।
दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके डी की ए फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 प्लस 4 दैट इज a इज इक्वल टू 8। a is 8. Now we will substitute the value in the formula. an is equal to 0. a हमने अभी हाल फाइंड करा है 8, n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और d हमारा आया है -2। इस 8 को इधर लेकर आए तो इट विल बिकम -8 n - 1 इंटू -2। -2 को नीचे ले आओ बच्चों डिवीजन में, n - 1 4, तो n इज इक्वल टू 5। -1 को सब्स्टिट्यूट करोगे ना इधर तो 4 + 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5। लेट अस चेक द आंसर। ओके, 5th टर्म, क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Word problem, again words ही हमारी प्रॉब्लम बनेंगे बच्चों समझने के लिए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द 17th टर्म ऑफ एन AP, एक AP है जिसकी 17th टर्म जो है एक्सीड्स यानी बढ़ना, एक्सीड्स का मतलब बढ़ना या बड़ा होना, exceeds its 10th term by 7। 17th टर्म एक AP की अपने 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन AP, एक AP की 17th टर्म exceeds its 10th term by 7, है ना, बड़ी है उसकी 10th टर्म से कितना, 7 बड़ी है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। 17th टर्म एक AP की उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब 17th टर्म में से मैं 10th टर्म को माइनस करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7। बच्चों यही वर्ड प्रॉब्लम है और यही वर्ड प्रॉब्लम को डिपिक्ट करना होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत समझ के पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के पढ़ना है, ठीक है। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, 10th टर्म से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है, तो 17 में से 8n माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। A17 कैन बी रिटर्न एज A + 16D एंड 8n कैन बी रिटर्न एज A + 9D। ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस है माइनस है 7, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7D, सो D इज इक्वल टू 7/7, तो D इज इक्वल टू 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। समझने की देरी है, बाकी तो सॉल्व हो जाता है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP, अगेन विच आ गया बच्चों, हाँ विच यानी n। विच टर्म ऑफ एन AP दिया हुआ है हमें, पहले AP लिख लेते हैं, चलो। AP इज 3, 15, 27, 39 so on। विच टर्म यानी वी हैव टू फाइंड द n। Which term of an AP will be 132 more than 54th term? फिर बच्चों वही घुमाने वाला आ गया क्वेश्चन। एक AP का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा उसकी 54th टर्म से,
एक एपी का कौन सा टर्म, हाँ, 132 ज़्यादा होगा उसकी 54th टर्म से, तो अपन मान लेते हैं वो टर्म है ए एन, जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, 54th टर्म से 132 ज़्यादा, यानी एडिशन। ठीक है, लेट द ए एन टर्म, ए एन इज द टर्म विच इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, a is equal to 3, d a2 minus a1, 15 minus 3 that is 12। अब बच्चों a n is equal to a plus n minus 1 into d। a n कितना है, a 54 plus 132, a is 3, n minus 1, d is 12। A54 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A54 कैन बी रिटर्न एज A plus 53D, है ना, इसको A ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू A plus n minus 1 into 12। A प्लस A इधर आएगा, माइनस A कैंसिल हो जाएगा ना, अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो ये 53D है, D कितना है 12 प्लस 132 n माइनस 1 इंटू 12। अब बच्चों इधर देखो 53 इंटू 12, 12 3 जा 36, ठीक है, 3 12 5 जा 636 प्लस 132 n माइनस 1 इंटू 12, है ना, तो 636 प्लस 132 दैट इज 867, 768 is equal to n minus 1 to 12. So 768 by 12 is equal to n minus 1. 72 6 times, 48 4 times. So clear, n is equal to 65. 65th term. n is 65. Okay, question number 12. Two APs have the same common difference. दो AP का common difference same है, and the difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? दो AP हैं, A1, A2, A3, so on. दो AP है, एक B1, B2, B3, इसको AN लिख लेते हैं तो इसको BN लिख लेते हैं। दो AP है, एक में A यूज़ कर रहा हूँ तो एक में B यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका भी D कितना है 7 और इसका भी D कितना है 7। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों की 100th टर्म यानी A100 और B100 डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म A100 माइनस B100 कितना मिलता है अपन को 100। What is the difference between their 1000th term? 1000 टर्म में के बीच में उनका कितना डिफरेंस होगा, मतलब A1000 माइनस B1000 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे फाइंड करना है और मुझे ये दिया हुआ है A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। ओके, लेट अस फाइंड द वैल्यू। A100 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 99D माइनस B100, it can be also written as B plus 99D। कितना दिया हुआ है 100, है ना बच्चों। इस वाली एपी की पहली टर्म है, इस वाली एपी की पहली टर्म भी है। अरे दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, डी। ठीक है, 7 नहीं दिया है, बोथ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ
द AP आर सेम DD, ठीक है, इसका भी D है और इसका भी D है, कॉमन डिफरेंस। तो दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो 100 टर्म इस वाली AP की कैसे लिखी, A + 99D, B100 कैन बी रिटर्न एज B + 99D। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, -B - 99D। अब देखो -99D + 99D कैंसिल, तो A - B = 100। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। हमें फाइंड क्या करना है, A1000 - B1000, तो A1000 कैन बी रिटर्न एज A + 999D, B1000 can be written as B + 999D। बच्चों दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो है ना, D आएगा वहाँ पर, ये हमें फाइंड करना है ना। ओके बच्चों, नाउ लेट अस फाइंड, कैसे फाइंड करें, ब्रैकेट को ओपन करा, ठीक, प्लस 999D कैंसिल बाय -999D। आंसर क्या है, A - B। क्या आया बच्चों, A - B, और A - B की वैल्यू कितनी है 100, मतलब दोनों की 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना होगा, 100 का ही होगा, ठीक है। Move to the question number 13. How many 3-digit numbers are divisible by 7? Okay. अब बच्चों यहाँ पे दिमाग का क्वेश्चन आ गया, हाँ, कितने 3-digit नंबर्स 7 से डिविजिबल है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो 7 10 जा तो 70 हो गया, 7 14 जा कितना हुआ 98 हुआ, 7 15 जा, अरे 98 क्या है 2-digit नंबर है ना, 7 15 जा 105। पहला जो नंबर 7 से डिविजिबल होता है 3-digit नंबर इज 105। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। सबसे आखिरी 3-digit नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल होता है, कैसे पता करोगे, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, किस किस को मालूम है, अगर किसी को मालूम है तो वो वैसे फाइंड कर सकता है, पर मुझे मालूम है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी को 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लास 10th में नहीं मालूम होगा, क्लास 5th में ही भूल गए। तो हम कैसे फाइंड करें, तो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर इज 999, लेट इट्स डिवाइडेड बाय 7, 1 जा 7, 4 जा 28, 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 5, रिमाइंडर इज 5। अब रिमाइंडर 5 बचा है तो सबसे बड़ा 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 999 माइनस 5, that is 994, 994, 994 which is divisible by 7। तो हमसे क्वेश्चन में ही उसने पूछा है हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, 3-digit नंबर्स 3 डिजिट के नंबर्स 100, 101, 102, दिस आर द 3-digit नंबर्स। 999 है ना, 100 से 999 तक 3-digit नंबर्स रहते हैं, और कितने 3-digit नंबर 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमें बहुत कुछ डिपिक्ट करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही नंबर 7 से डिविजिबल होंगे जो 7 के मल्टीपल्स होंगे,
अरे बच्चों सबसे पहले तो दिमाग हमारा ये चलना चाहिए 7 से डिविजिबल कौन होता है, जो 7 के टेबल में आता है, और 7 के टेबल में कौन कौन आते हैं, 7 के मल्टीपल्स ही आते हैं, ठीक है। इसलिए पहला 3 डिजिट मल्टीपल 105, लास्ट 3 डिजिट मल्टीपल इज 994, और इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7 के मल्टीपल्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7, 14, 21, 28, 35, कितना डिफरेंस रहता है, सबके बीच में 7 का ही रहता है ना। तो D इज इक्वल टू 7। वी हैव टू फाइंड n, क्या फाइंड करना है, n। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। an इज 994, a इज 105, D इज 7। 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7। तो अपन माइनस करके देखते हैं बच्चों, 994 माइनस 105, 9, 8, ठीक है, 8, 89 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 7। तो 889 बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1, फिर 2, तो n इज इक्वल टू 128। माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। ओके, करेक्ट। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 और 250, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स लाया करते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा लाया करेगा, 12, ठीक है, और 250 के बीच में, 250 से पहले कौन सा लाया करेगा, 248, 4 के टेबल में आता है ना बच्चों। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब क्लास 10th में तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए, 254 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके पहले वाला इवन नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके पहले 250 के पहले कौन सा इवन नंबर आता है, 248, वो 4 से डिविजिबल होगा। सो a इज इक्वल टू 12 हो गया, an इज इक्वल टू 248 हो गया। हाउ मेनी बोला है उसने, क्या बोला है, हाउ मेनी मीन्स वी हैव टू फाइंड n लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में, 10 के बाद 12 आएगा, 250 से पहले 248 आएगा, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अब उसने क्वेश्चन में भी क्या बोला है, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 4 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स, और सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 4 का। तो D इज इक्वल टू 4। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, an इक्वल टू a प्लस, सो an इज 248, a इज 12, n माइनस 1, D इज 4। तो 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 माइनस 12 इज 236, n माइनस 1 इंटू 4। तो 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 59, तो n इज इक्वल टू 60। There are 60 multiples which lie between 10 and 250. Okay, move to the next question, that is question number 15. For what value of n
आर द nth टर्म ऑफ द AP आर इक्वल। बच्चों हमें दो AP दी हुई हैं। पहली AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी AP जो है वो हमें दिया हुआ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ओके, नाउ वो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वह कौन सी वैल्यू होगी जिस पर दोनों AP, ठीक है, आर द nth टर्म ऑफ द टू APs आर इक्वल। दोनों AP की टर्म जो होगी वो सेम आएगी। ऐसी n की कौन सी वैल्यू होगी कि इन दोनों AP की जो nth टर्म है वो सेम आए। ओके, सो ये पहली AP है बच्चों, ये सेकंड AP है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट AP सॉल्व करते हैं यहाँ पे अपन। तो फर्स्ट AP का A कितना है 63, ठीक है, और D कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 दैट इज 2। हाँ, अब इसकी nth टर्म कितनी होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वो हो जाएगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। दिस इज इक्वेशन 1। अब अपन सेकेंड AP पे आते हैं बच्चों। सेकेंड AP का A इज 3, D इज 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है। इसका n हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो n इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, उसने बोला है कि ये जो फर्स्ट ये दोनों टर्म होंगी ये क्या होंगी इक्वल। पहली AP की nth टर्म और सेकंड AP की nth टर्म, दोनों टर्म क्या होंगी इक्वल। ओके, तो ये टर्म और ये टर्म सेकंड AP, फर्स्ट AP की nth टर्म, सेकंड AP की nth टर्म, दोनों इक्वल टर्म्स हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, फाइंड कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, इट इज 60। हाँ, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7n माइनस 7 माइनस n प्लस 2n। तो 60 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 2 है ये, तो 7n माइनस n दैट इज 6n माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। (63 plus n minus 1 into 2) and it is 3 plus n minus 1 into 7. 63 minus 3. Okay, excellent. (63 plus 2n minus 2), 3 plus 7n minus 7, 61 plus 2n minus 4 plus 7n, 61 plus 4, 7n minus 2n, so 65 is equal to 5n, n is equal to 65 by 5, that is n is equal to 13. 13th टर्म दोनों AP का क्या होगा इक्वल, तो n is equal to 13. Okay, note it down. Move to the question number 16.
डिटरमाइन द AP, एक AP बनाना है whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। एक AP बनाना है, एक AP लिखना है जिसका थर्ड टर्म कितना है 16, और फिर क्या बोला है 7th term exceeds the 5th term, 7th term 5th term से बड़ा है कितना 12, 7th term is greater than 5th term by 12। ओके, तो बच्चों पहले हम A3 कैन बी रिटर्न एज A plus 2D is equal to 16, दिस इज इक्वेशन 1। अब A7 minus A5 is equal to 12, A7 can be written as A plus 6D minus A5, A5 can be written as A plus 4D is equal to 12, 6D minus A minus 4D is equal to 12, 6D minus 4D is 2D is equal to 12, so D is equal to 12 by 2, that is D is equal to 6, D कितना आ गया 6। अब बच्चों इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 कहती है A plus 2D is equal to 16, तो A plus 2 into 6 is equal to 16, तो A is equal to 16 minus 12, तो A is equal to 4। हमें पता चल गया है A equal to 4 है, D is equal to 6 है, AP लिख देते हैं, तो AP होता है A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, A 4, A plus D 10, A plus 2D 4 plus 12 16, A plus 3D 4 plus 18 22 and so on. This is our AP. Let us check 4, 10, 16, 22 and so on. Okay, move to the question number 17. Find the 20th term from the last term of the AP. Okay बच्चों, now this question is very special question and my favorite question, है ना। अब यहाँ पर जो हमने इंट्रोडक्शन में जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उन्हीं का यूज़ होगा। फाइंड द 20th टर्म, एक AP दिया हुआ है बच्चों, क्या है 3, 8, 13 और लास्ट में दिया है 253। अब बोलना क्या चाह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। सबसे पिछली टर्म से 20th टर्म इधर का फाइंड करो, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म से, सबसे लास्ट टर्म से इधर 20वां टर्म फाइंड करो। आगे से नहीं बोला है, उससे पीछे से बोला है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक AP का रिवर्स भी क्या होता है, द रिवर्स ऑफ एन AP इज ऑल्सो एन AP। यस, तो अगर मैं इस AP को रिवर्स करके लिखूं बच्चों तो इट विल बिकम 253, 13, 8, 3। हाँ, अब मुझे इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म पीछे से फाइंड करना है, तो मैंने रिवर्स करके लिख दिया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, A पहला टर्म यानी 253, D फाइंड करना है इसका। अरे बच्चों कोई सी भी टर्म में से उसकी पहले की टर्म माइनस कर दो, 3 - 8 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, दैट इज -5। हमें क्या फाइंड करना है, A20 इज A plus 19D, तो A कितना हो गया 253, 19 D कितना है -5, तो 253, 19 5 जा -95, 253 -95, 13 - 5 8, 14 - 9 5, that is A20 is equal to 158। पीछे से 20वां टर्म होगा 158,
पीछे से 20वां टर्म 158. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. The sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24. एक AP का फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है 24. A4 plus A8 is equal to 24. And the sum of sixth term and the 10th term is 44. सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो है 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी. पहली 3 टर्म फाइंड करनी है एपी की. कोई दिक्कत नहीं बच्चों. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं. A4 कैन बी रिटर्न एज A plus 3D. A8 कैन बी रिटर्न एज A plus 7D is equal to 24. So 2A plus 10D is equal to 24. This is equation 3. चलो अभी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. यहाँ से लिख पाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2. A6 यानी A plus 5D, A10 यानी A plus 9D, 44. तो 2A plus 14D is equal to 44. This is equation 4. ओके, नाउ ये 2 इक्वेशन मिली हमें. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं. 2A plus 10D is equal to 24. 2A plus 14D is equal to 44 माइनस, तो -4D और ये हो जाएगा -20. तो D इज इक्वल टू -20 बाय -4. तो D इज इक्वल टू 5. D कितना मिला? 5. D is 5. Now what we have to find? We have to find the first 3 terms. तो D तो पता चल गया बच्चों. अब A फाइंड करना है हमें. किसी भी एक टर्म में वैल्यू, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. तो A भी मिल जाएगा. ठीक है. 2A 10 into 5 is equal to 24. तो 2A ये कितना हो गया? 50 is equal to 24. 2A is equal to 24 minus 50. तो 2A is equal to -26. तो A is equal to -13. A पता चल गया. A is -13. ओके, अब हमें 3 टर्म लिखनी है. पहली टर्म A, दूसरी A plus D, तीसरी A plus 2D. तो A is -13. A plus D -13 plus 5. तीसरी टर्म -13 plus 2 into 5. That is -13 -8 -13 plus 10 -3. So this is our required answer. Okay, note it down. Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. सुब्बा राव ने अपना काम स्टार्ट किया 1995 में और उसकी सैलरी कितनी थी? 5,000. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती जाती है. तो D इज इक्वल टू 200. हर साल बढ़ रही है 200. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000. कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी?
सुब्बा राव ने जब 1995 में काम स्टार्ट किया था उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5000। हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता जाता है। 5000 पहले साल उसको 5000 मिले, उसके अगले साल उसको कितनी मिलेगी 5200, 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ ना। और कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, कितने साल काम करने के बाद उसकी हर साल एनुअल इनकम 7000 हो जाएगी। तो कितने साल मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, मिला हुआ है बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 7000, a इज 5000 है ना, n माइनस 1 d इज 200। तो 7000 माइनस 5000 n माइनस 1 इंटू 200, ट्रांसपोज कर दिया 5000 को, तो इट विल बिकम 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 11। 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, एनुअल सैलरी ऑफ अ सुब्बा राव विल बिकम 7000। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने पहले वीक में 5 रुपये सेव करे, फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। पहले एक साल के पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये बचाया। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और अपनी वीकली सेविंग को उसने 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ करना शुरू करा। पहले सप्ताह उससे 5 रुपये बचाए। नेक्स्ट वीक शी सेव 6.75 रुपीज़, है ना, 1.75 रुपीज़ उसमें बढ़ा दिए। उसके नेक्स्ट वीक फिर उसमें 1.75 रुपीज़ बढ़ा दिए, तो D इज इक्वल टू 1.75। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग विल बिकम 20.75। कोई से ऐसे वीक में उसकी सेविंग जो पहुंच गई है 20.75, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20.75, a इज 5, n माइनस 1, d इज 1.75। तो बच्चों इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं अपन, इट विल बिकम -5 n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 15.75 n माइनस 1 1.75, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इट विल डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो इट 9 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 10। 10th वीक में जो उसकी सेविंग होगी इट विल बिकम 20.75, यस, इन 10th वीक। ओके बच्चों, तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। नाउ मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ जो आपको खुद को करने हैं। दैट इज़ एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, एग्जांपल 9। कौन कौन से एग्जांपल? 7, 8 एंड 9। ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ। अगर नहीं बनता है तो आप लोग मुझे बताएं, अपन सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, कीप occupied yourself in good work and creative work. Thank you.